Hi guys, I am Sai Pragyannath of Kendriya Vidyalaya Puri. My class is 6. I upload the video of difference between ocean and sea. It is a very interesting and beautiful video. Sea. How is the sea and how is the ocean? Are you able to see? Yes. See how is the ocean, how is the sea, how from the sea and ocean the river is flowing. Difference between ocean and sea. Water bodies are an accumulation of water on the surface of the earth. We refer this term to ocean, sea and more. That is why it makes it significant to understand the difference between ocean and sea. It will help us in clearing a lot of misconceptions. Oceans are vast bodies of water covering around 70% of the Earth's surface. On the other hand, seas are smaller bodies which are partially enclosed. Thus, you see that the five oceans of our Earth are just one large interconnected water body. On the contrary, we have around 50 smaller seas that are spread throughout the world. We will be able to learn the differences when we take a closer look at their depth, area and marine life. Definition of ocean. Oceans are gigantic masses of water that covers around 70% of the earth. मतलब ओशियंस बहुत बड़े हैं जिससे कि वो 70% अर्थ का ले गए हैं. दे आर लार्जर देन द सी एंड डीपर टू. वो समुद्र से बड़े भी हैं और गहराई भी है उनकी ज़्यादा. Moreover, the movement of the ocean's current impacts the weather of the world all over. सी ओशन जैसे जैसे बहता है उससे जैसे जैसे हवाएं आते हैं उसी से ही हमारा सीजन और वेदर उसकी चेंजेस होने लगता है. दिस वाटर बॉडी बिटवीन कॉन्टिनेंट्स कॉम्प्रोमाइजेस ऑफ सॉल्ट वाटर. आप सभी को तो पता होगा कि हमारे अर्थ का कितने कॉन्टिनेंट्स है और कितने ओशियंस है. पता है ना, 7 कॉन्टिनेंट्स है और 5 ओशियंस है. और उन्हीं के बीच में जो जो ओशियन सारे जाते हैं वो पूरा सॉल्ट वाटर होते हैं ओशियन और सी की. इट गोज ऑन टू जॉइन द स्मॉलर सीज. छोटे छोटे समुद्र मिलके एक बड़ा महासागर बनता है. ओशियन का हिंदी है महासागर, सी का हिंदी है समुद्र. देयर आर 5 ओशियंस इन द वर्ल्ड. द पैसिफिक ओशियन, the Atlantic Ocean, the Arctic Ocean, the Indian Ocean and the Antarctic Ocean. Due to the largeness and depth of the ocean, it is inhabitable for most marine life. You will commonly find microscopic planktons, bacteria and shrimps in here. यहाँ पे ना जो जो लिखा हुआ है माइक्रोस्कोपिक, प्लैंकटॉन्स, बैक्टीरिया एंड श्रिम्प, ये सब ओशियंस में भी मिलती है, सी में भी मिलती हैं. लेकिन ओशियन में उसका परिमाण ज़्यादा होता है, सी में कम. ठीक है, आइए हम जानते हैं डेफिनेशन ऑफ सी. Sea refers to a body of water which is smaller in size than the ocean. It is where the ocean meets the land and comprises of saline water. In total, you find 7 seas all over the world, all of them partially enclosed by land except for the Caspian Sea, which is enclosed by land on all sides. Moreover, you will find marine life in abundance in the sea because of it being closer to land and less deep than the ocean. Thus, it makes a perfect habitat for marine life.
Further, the sea's temperature and location determine the marine life which inhabits the particular sea. सारे सी वर्ल्ड में होते केवल 7। सी का परिमाण इस ब्रह्मांड में केवल 7 ही है। 7 सीज हैं, 5 ओशियन हैं। वही 7 सीज में से एक सी है कैस्पियन सी, जो कि उसके चारों तरफ जगहों से वो घेरा हुआ लॉक है। जैसे कि हम अभी इस कोरोना काल के कारण लॉकडाउन में घर में लॉक होके रहे हैं। और आप सभी को तो एक थॉट याद होगा कि टाइम एंड टाइड डज नॉट वेट फॉर एनीवन। वो कभी भी किसके लिए वेट नहीं करते। टाइड क्या पता है आपको? पहले मैं वेव बताता हूँ। वेव है जो हम हिंदी में बोलते हैं लहरों। समुद्र की लहरों बहुत तेज हैं, लेकिन समुद्र से तेज लहर किसकी है ना? ओशियन की। पता है ना आपको? अब ये टाइड क्या है? टाइड मतलब एक बड़ा सा वेव्स। बड़ा वेव वो आता है बहुत ऊंचे से। एक सेकंड में आपको वो पिक्चर तो दिखा ही दूंगा, लेकिन पहले आप जानिए वो क्या है। वो बहुत जोर से आता है। सी में तो थोड़ा कम के आता है, ओशियन में तो वो पूरा डुबा ही देगा। ठीक है, आइए हम कुछ पिक्चर्स देखते हैं ओशियन की। सम पिक्चर्स ऑफ ओशियन। देखिए यहाँ पे वो टाइड आया है इस पिक्चर में। इधर टाइड आया है और इधर सारे वेव्स जा रहे हैं। देखने को आपको मिल रहा है ना? ठीक है, आइए अब हम सम पिक्चर्स ऑफ सी की देखेंगे। देखिए ये कितना ब्यूटीफुल पिक्चर है। सी में ये सारे वेव्स आ रहे हैं और इधर कुछ हाउसेस भी बना हुआ है और इधर वो वेव्स आते हैं। आप भी देखे होंगे, अब पूरी भी जब आए होंगे उधर देखे होंगे। पूरी सी बीच बहुत साफ हो गया है अब। हाउ टू टर्टल गोज टू सी। टर्टल कैसे समुद्र के अंदर जाते हैं? वो ऐसे होके चल के जाते हैं। लेकिन आप बोलिए तो आपके मन में भी क्वेश्चन जरूर होगा, मेरा भी था, लेकिन अब क्लियर हो गया है कि क्वेश्चन है कि हर वक्त टर्टल अपने अंडा क्यों समुद्र के थोड़ा दूर बालू में देता है? पहला क्वेश्चन है बालू में क्यों देता है? बालू में देने से वो गर्म रहेगा और उसे कोई अच्छे से पहचान नहीं पाएगा। और अगला क्वेश्चन, वो इतने दूर में क्यों देता है? पास में ही देना चाहिए, क्योंकि उन्हें पक्षियाँ मार देते हैं। दूर में देता है ताकि उसके बच्चे कुछ पावर सीखे, वो कुछ एडवेंचर जैसे काम करे, इसलिए टर्टल थोड़ा दूर में देता है। और अगर बहुत सारे टर्टल 100% बच्चे को जन्म देंगे, उससे 1% बच्चा ही जाएगा सी के अंदर। और वो ओशियन के पास क्यों नहीं देता? ओशियन तो चारों ओर घेरा हुआ है और आइलैंड में इतने भी नहीं देते हैं टर्टल देखने को मिलते हैं। ज़्यादा करके इधर नॉर्मल जगह में मिलते हैं। ठीक है, आपको अगर कुछ और क्वेश्चन डाउट होगा कि क्या होगा, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, सपोर्ट मी गाइस बाय लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप सब्सक्राइब करने से ना क्या होगा कि आप मेरे सारे वीडियोस पा सकेंगे। और मैंने भी मेरे पहले कुछ वीडियोस बनाए हैं, आप भी उसे ज़रूर देखिएगा और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। अगले वीडियो में हम ज़रूर मिलेंगे। मुझे जब फ्री होगा तो मैं ज़रूर कुछ ना कुछ वीडियो बना के ही भेजूँ। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।